Hello guys, how are you? This is Dr. Jyoti and today I'm here with a new lecture on xenobiotic metabolism part 2. In part 1, I just explain you what are xenobiotics and the sources of xenobiotics. So today we will start with the xenobiotic metabolism. As I explained you in the last lecture, what are xenobiotics? Xenobiotics are chemical toxic substances found within an organism, but they enter inside the body or inside the living organism from out, outside, and the xenobiotic also cover the substances which are produced in the higher concentration than the usual in the living organism. So these are toxic substances, and in today's lecture I will explain you how these toxic substances metabolize and how they excreted out from the body. So let's go on the next slide. Before the metabolic process of xenobiotic, here are some questions which I just want to answer you to clear the facts about the metabolism of xenobiotic. First question is, as you can see here, first question is why metabolism of xenobiotic is required. As you know, these are the toxic substances, xenobiotic, which are toxic substances. So this is essential to excrete these toxic substances from the body. If this will not excreted out, they can deposit in our body in the living organism and cause various kind of diseases. So this is really essential to excrete out the xenobiotic compound, and that's why we require the metabolism of xenobiotics. And second question is about what are the result of xenobiotic metabolism. कि xenobiotic का जब metabolism हो जाता है तो होता क्या है कि toxic compound के साथ ऐसा क्या होता है कि वो excrete out होता है. So first is the converts the solubility of compound. मेटाबॉलिज्म की वजह से ही जो ये टॉक्सिक कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी को हम चेंज कर पाते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, सो दे आर tough to excrete out as it is. So metabolic, through the metabolic process, the solubility of the toxic compound converted, and these the metabolism make them more soluble and they can be excreted now easily. एंड सेकेंड इज द फैसिलिटेटेड एक्सक्रीशन. मेटाबॉलिज्म की वजह से ही उनके अंदर जो सॉल्युबिलिटी चेंजेस होते हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही इनका एक्सक्रीशन जो है पॉसिबल है. थर्ड इज द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन. मेटाबॉलिक एक्टिवेशन जो कि मेटाबॉलिज्म का xenobiotic मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, इसके थ्रू जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाते हैं. Just because of that changes, these toxic compounds are possible to excrete out from the body. And third question is what is the purpose of biotransformation of the xenobiotic? Biotransformation वो प्रोसेस है जो xenobiotic के मेटाबॉलिज्म के साथ चलता है या किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ चलता है. Biotransformation is a change of the chemical structure of any compound by which that it is easy to excrete out that compound or it is easy to absorb the compound. Means biotransformation chemical structure में change करने के बाद किसी भी compound को easy हो जाता है absorb करना और excrete out करना. Means ये desirable changes करता है, चाहे वो कंपाउंड टॉक्सिक हो चाहे वो कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड्स हो, उनको केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज करके अब्सॉर्ब कराना और एक्सक्रीट आउट कराना इजी हो जाता है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स उन्हें एक्सक्रीट आउट करना और मेटाबॉलिक एक्टिवेशन मीन्स कि उन्हें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे कि उनका एक्सक्रीशन ईजी हो जाए. एंड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन इज what is the elimination route of the xenobiotics? These are the elimination route of the xenobiotics. The xenobiotics or the toxic compound can be excreted out through the urine, bile, stool, by lungs, or we can say by exhalation, and they can also excrete into the human milk. So these are the elimination route of xenobiotic metabolism. Now I'm just telling you these are the organs which are involved. These are the organs, as you can see in the diagram, which are mainly involved in the metabolism of the toxic compound. In the diagram I just wrote the drug metabolism. Drugs are also the xenobiotics or the toxic compounds.
So these are the organs which are involved in the metabolism of any toxic compound. gallbladder, intestine के थ्रू हम डायरेक्टली फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट कर सकते हैं. लीवर में सारी जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट हैपन्स इन द लीवर थ्रू द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द लीवर. एंड किडनी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं. So these are the organs which are involved in the metabolism of the xenobiotics. And liver especially play a major role in the metabolism of xenobiotics. The enzymes produced by the liver play a major role in the metabolic process of the xenobiotics, and variety of enzyme liver produces which helps in the metabolism. In the metabolism of the food also, and they also can metabolize the toxic compounds. And the enzymes present in the endoplasmic reticulum in the liver which helps in the metabolism of the toxic compound and some other compound also. Now we will go on the next slide. In this slide I will explain you कि किन pathways के through xenobiotic को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपनी एक्सक्रीटेड आउट होती है जब वो, तो क्या क्या कोई टॉक्सिक कंपाउंड जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो किस किस फॉर्म में जाकर वो एलिमिनेट हो सकता है या एक्सक्रीट हो सकता है. ऐसे ही फर्स्ट जैसे कि आप आई जस्ट एक्सप्लेन है 4 पाथवेज. फर्स्ट इज द एलिमिनेशन अनचेंज. कुछ टॉक्सिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें चेंज करने की या कोई ट्रांसफॉर्मेशन की, कोई मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. दे कैन एक्सक्रीटेड टू दैट टॉक्सिक कंपाउंड एज इट इज. तो these kind of compounds comes under first category elimination unchanged, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक xenobiotics आते हैं. मीन्स जो कंपाउंड मोर सॉल्युबल है इन वाटर में और लिपिड्स में, उनको हम यूरिन और फीकल के थ्रू हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड हैं जो डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज यूरिन और फीकल मैटर में जाकर एक्सक्रीट हो जाते हैं, के थ्रू बाहर चले जाते हैं. सेकेंड इज द रिटेंशन अनचेंज. रिटेंशन अनचेंज में लाइक कैडमियम एंड द लेड, जो कि चेंज होते ही नहीं है, इनका कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी नहीं होता, और ये एज इट इज भी जाकर एक्सक्रीट नहीं होते हैं, neither through urine or not fecal matter. So they just remain stored in the fat or in the bones. Means ये कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी या बॉडी से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, और दे स्टोर्ड इन द बोन एंड बॉडी फैट. So this is the second category. And third category is a spontaneous chemical ट्रांसफॉर्मेशन. ये वो टॉक्सिक कंपाउंड है जिन्हें एक्सक्रीशन के लिए कुछ केमिकल चेंजेस की जरूरत होती है, एंड आफ्टर दीज केमिकल चेंजेस दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट. विदाउट दीज चेंजेस दे कैन नॉट एक्सक्रीट. एंड फोर्थ वन इज द एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म. इन दिस कैटेगरी द टॉक्सिक कंपाउंड passes through the various enzymatic reaction, and after these reaction they comes in the form. In that form they can be excreted easily from the body. So these are the 4 categories, and we can say that these are the 4 type of forms in which the toxic compound can be excreted from the body. Now we will go on the next slide. In this slide I will explain you the mechanism of xenobiotic metabolism. This is the basic mechanism which is followed by the toxic compound to metabolize. As you can see here in this diagram, as a drug, as you know, some drugs are also toxic for living organism. When this toxic drug will enter in a organism, it will start to enter in the phase 1. phase 1 में क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी चीज इनटेक की जाती है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंटर करती है, और मेटाबॉलिक के प्रोसेस के टाइम पर ही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, ये 3 बेसिक रिएक्शंस होती हैं जो उस इनटेक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देती हैं. मीन्स कि कोई कंपाउंड की वाटर सॉल्युबल होना है ज़्यादा हो जाता है, या कोई
लेस वाटर सॉल्युबल या मोर लाइपोफिलिक हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शंस उस पर्टिकुलर ड्रग की या टॉक्सिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन इजी हो जाता है बॉडी से। आफ्टर दीज बेसिक 3 रिएक्शन, this drug will enter in the phase second. During the phase second, this particular toxic compound will conjugate here. Means कि जो यहाँ पर toxic compound हमारा phase 1 के बाद हमें मिला है वो अब prodrug कहलाएगा, और ये prodrug एक particular functional group के साथ phase second में combine करेगी, जो functional group इसके साथ attach होकर इसे inactive form में ले आता है, means और वी कैन से कि इन लेस टॉक्सिक फॉर्म में भी ले आता है। तो फेज 1 में एंटर करेगी कोई टॉक्सिक ड्रग, उसके बाद जहां पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के थ्रू उसकी सॉल्युबिलिटी को कन्वर्ट किया सकता है, और उसके बाद फेज सेकंड में एंटर करेगी। फेज सेकंड में एंटर करने पर कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ इस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड के साथ ऐड होगा, और जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी या ये लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस कॉन्जुगेशन रिएक्शन it will call the conjugation product, or this conjugation product will enter into the phase third, and after the phase third this toxic compound will excreted from the body. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि as I draw here a circle in yellow color, that is that some drugs directly enter in phase second. कुछ ड्रग फेज सेकंड में डायरेक्टली एंटर करती है, ना कि फेज फर्स्ट में। तो ऐसा कैसे, किस चीज पर डिपेंड करता है कि कोई ड्रग फेज फर्स्ट में एंटर करेगी या फेज सेकंड में एंटर करेगी। इसके लिए एक की पॉइंट है कि अगर कोई भी ड्रग या कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड ओरिजिनली टॉक्सिक नहीं है, मींस कि वो डायरेक्टली टॉक्सिक नहीं है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बट व्हेन दिस टॉक्सिक कंपाउंड विल मेटाबोलाइज इट विल क्रिएट सम टॉक्सिक कंपाउंड, तो वो फेज 1 में एंटर करेगा। जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड हमने लिया है दैट इज नॉट डायरेक्टली टॉक्सिक, सो इट विल प्रोसेस विद द अदर फूड्स, जो भी हम नॉर्मल फूड्स ले रहे हैं उसी के साथ वो प्रोसेस होगा। और जब उसके साथ प्रोसेस होने के बाद ये जो रिएक्शंस है ये नॉर्मल किसी भी फूड इनटेक को प्रोसेस करने के लिए है, तो जब ये नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा इसका और फूड मटेरियल के साथ, तब वो कंपाउंड उस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज करेगा, तो तब बॉडी उसे आइडेंटिफाई करेगी और उसे फेज सेकंड में लेकर जाएगी। तो ये तो है वो कंडीशन कि जब कोई पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड फेज 1 के थ्रू एंटर करता है, मींस वो डायरेक्टली टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन जब डाइजेशन रिएक्शन में एंटर करता है तो कुछ टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करता है, तो इसलिए पहले वो फेज 1 में एंटर करेगा, देन फेज सेकंड में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली टॉक्सिक होते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हम जैसे इनटेक करेंगे तो बॉडी कैन आइडेंटिफाई कि दीज आर टॉक्सिक कंपाउंड फॉर द लिविंग सिस्टम, सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड विल एंटर डायरेक्टली इनटू द फेज सेकंड। फेज सेकंड में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद दे विल मेक अ कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट एंड देन दे विल एंटर इन द फेज थर्ड एंड दे विल एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। सो दिस वाज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द metabolism of any toxic compound. And now we will go on the next slide. In this slide I'm just showing you the basic reactions which happens during the metabolism of the xenobiotic. These are the basic 3 reaction which occurs during the metabolism of the toxic compound. Phase 1 biotransformation, phase 2 conjugation, and phase 3 is the excretion. So phase 1 बायोट्रांसफॉर्मेशन, एज आई मेंशन्ड हियर, मींस कि इस फेज में जो बायोकेमिकल चेंजेस होने होते हैं, कोई भी केमिकल चेंज उस केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, वो फेज 1 में होता है। फेज सेकंड में किसी फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट अगर उस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड को एक्सक्रीट होने के लिए जरूरत है तो वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फेज सेकंड कॉन्जुगेशन। एंड इन फेज थर्ड वो टॉक्सिक कंपाउंड के सारे कॉन्जुगेशन और बायोट्रांसफॉर्मेशन जो भी उस टॉक्सिक कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फेज 1 और फेज सेकंड फॉलो होने के बाद वो टॉक्सिक कंपाउंड फेज थर्ड में एंटर करने के बाद एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। सो दीज आर द 3 phases ऑफ xenobiotic metabolism. Now I will explain you these 3 phases in detail.
In the first phase, which is the biotransformation phase, I will explain you what is the biotransformation. Biotransformation is a metabolic modification of the molecular structure of a compound. कि कोई भी compound, either that is a toxic or either that is a food, any kind of compound which is intake by any organism, that will convert the structure of that particular compound. मीन्स कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जो इनटेक किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसके स्ट्रक्चर में केमिकल चेंजेस या केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाते हैं, जिसके आइदर बाय लॉस और ऑल्टरेशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड. ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिक कंपाउंड हमने इनटेक किया था उसको कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे कंपाउंड में. एंड टॉक्सिक कंपाउंड के केस में बात करें तो वो लेस टॉक्सिक हो जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और अगर नॉर्मल फूड इनटेक की न्यूट्रिएंट्स की इनटेक की बात करें तो वो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो फेज 1 और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द नॉर्मल फेज ऑफ एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें हम जो भी इनटेक किया हुआ either that is food or the toxic compound, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी ऐसे कंपाउंड में जो इजीली एब्जॉर्ब हो सके या टॉक्सिक है तो एक्सक्रीट हो सके. तो दिस इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट हैपन्स इन द फेज 1 ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड. मीन्स दिस इज द फेज 1 ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड. और इस फेज 1 में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो which are secreted by the liver, which play a major role in the phase 1 or we can say in the biotransformation. And cytochrome P450 is the enzyme which is secreted by the liver. This play a major role in the biotransformation of the toxic compound. In this slide, I'm showing you the basic reaction involved in the phase 1, or we can say this is the phase 1 of the xenobiotic metabolism. During the phase 1 of the xenobiotic metabolism, these three basic reactions occurs. ये वो reactions हैं जो normally किसी भी food के intake होने पर या कोई भी material जो हमने intake किया, either that is toxic or food, these three reactions will occur: oxidation, reduction and hydrolysis reaction. You all are familiar with these three reactions. Oxidation means this is the chemical process in which oxygen is used to get the energy from the carbs, and this is also called the aerobic metabolism. And hydrolysis reaction is the breakdown of any substance by using the water molecule, and the reduction is the loss of oxygen atom, and then the substance will get the electron. So by these three reactions, the solubility of the any compound can be converted. This is a basic event of these reaction. Means कि phase 1 में ये तीनों reaction होने का purpose सिर्फ इतना है कि जो toxic compound या कोई भी compound हमारे enter किया है उसकी solubility को convert करना. And by changing the solubility, now this compound can be excreted from the body easily. And so these are some enzymes which are involved in the phase 1 of the xenobiotic metabolism: aldehyde, alcohol dehydrogenase, deaminases. And as I told you, cytochrome P450 is the main enzyme which is produced by the liver, play a major role in the xenobiotic metabolism. So now we will go on the next slide. In this slide, I am explaining you about the cytochrome P450, which is a major enzyme play the role in the metabolism of toxic compound. Cytochrome P450 is a isoenzyme that contain a heme group, and it is embedded primarily in the bilipid layer of the endoplasmic reticulum of hepatocytes. Hepatocytes क्या होती हैं? Liver cells. यानी कि cytochrome P450 जो एंजाइम है ये liver के जो cells होते हैं hepatocytes जिन्हें हम कहते हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एम्बेडेड होता है लिपिड लेयर्स में. And it is the major enzyme which play a role in the metabolism of many drugs, steroids and other carcinogens.
So this is the main enzyme, and these are the different forms of this enzyme. Because cytochrome P450 is an enzyme which have many forms, near to 100 forms are found in the different organism. So these are the main forms which are involved in the drug metabolism, which I am showing here. As you can see here, first, this is a form of cytochrome P450 which is not present in the liver, but it is present in lungs, mammary gland and placenta during the pregnancy. And these two forms, D26 and 3A4, these are important because D2D6 form of P450 play a major role in the xenobiotic metabolism. Most of the drugs are metabolized by this form of cytochrome P450, most of the drugs. And 3A4 metabolized to the drugs or to the toxic compound which can cause the any harm to the central nervous system. 3A4 is involved in that kind of drugs metabolism. So these are the different form of the cytochrome P450, and these different forms play the role in the metabolism of different toxic compounds. And now we will go on the next slide. This is the phase second of the xenobiotic metabolism. इस फेज में जो भी टॉक्सिक कंपाउंड होता है उनका कॉन्जुगेशन होता है, मींस कि जो टॉक्सिक कंपाउंड मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है, और ये हम और पोलैरिटी उसकी जो है वो चेंज होती है। मींस जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं वो उनकी पोलैरिटी जो होती है कम होती है, इसलिए वो दे आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी इजीली, और इस पोलैरिटी को हम इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग द फेज सेकेंड। मींस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फेज के दौरान टॉक्सिक कंपाउंड की पोलैरिटी को कन्वर्ट करता है, और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप इस टॉक्सिक कंपाउंड के साथ आकर एड ऑन होते हैं जो इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और इस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसे इस टॉक्सिक कंपाउंड को एक्सक्रीट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म से इजी हो जाता है। So in the conjugation, these are some basic reaction, and the conjugation mainly takes place in the liver and kidney also. So these are the sites of conjugation, or we can say site of phase second during the metabolism of toxic compound, and these are the basic reaction which happens during the metabolism of toxic compound. And you can see here the first reaction is glucuronidation. In this reaction, glucuronidation, the glucuronic group is add on the toxic compound, और इस ग्रुप के एडिशन की वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड जिसकी पोलैरिटी कम होती है वो ज़्यादा पोलर हो जाता है, और जिसकी वजह से ये इस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड को एक्सक्रीट करना इजी हो जाता है। एंड सल्फेशन में सल्फोनिल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, और इसी के साथ एड ऑन होता है ये टॉक्सिक कंपाउंड पे, या किसी और तरह से रिएक्ट करता है जिससे मींस के सल्फोनिल ग्रुप का ही रिएक्शन मेनली इस सल्फेशन रिएक्शन में होता है, और जो से टॉक्सिक कंपाउंड को एक्सक्रीशन को इजी कर देता है। थर्ड इज द एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मेनली उन्हीं टॉक्सिक कंपाउंड्स के साथ होता है जिन ड्रग्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो ग्रुप्स होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, या सल्फोहाइड्रिल ग्रुप होता है। तो मेनली वो ड्रग्स जिनके अंदर ये तीन ग्रुप्स होते हैं, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सल्फोहाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनके साथ एसिटाइलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप जो होता है उस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड के साथ ऐड होता है, और इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है और उसे मोर सॉल्युबल कर देता है। तो दैट्स व्हाई इट मेक द इजी टू द टॉक्सिक कंपाउंड फॉर द एक्सक्रीशन। एंड फोर्थ वन इज द methylation. Methylation is a normal process which happens in the living organism. Methylation जो DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे बाइंड अप करने का एक प्रोसेस है। मिथाइलेशन उसमें हेल्प करता है, मीन्स कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन्स में बाइंड अप रहता है। दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ मिथाइलेशन, बट बाय द टॉक्सिन्स एंट्री दिस प्रोसेस गेट डिस्टर्ब, और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करने के लिए मिथाइलेशन जो होता है कुछ मिथाइल ग्रुप आकर उसके टॉक्सिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और उस टॉक्सिक कंपाउंड को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं,
जिसकी वजह से जो मिथाइलेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में नेचुरली चल रहा होता है उसको ये टॉक्सिक कंपाउंड डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। सो यू गेट माई पॉइंट कि जो मिथाइलेशन है नॉर्मल प्रोसेस है जो डीएनए को सेफ रखता है, बाइंड अप फॉर्म में रखता है, और उस प्रोसेस को कोई टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स जो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो बिकॉज दैट इज टू हार्मफुल, इसलिए कॉन्जुगेशन रिएक्शन के थ्रू कुछ उन टॉक्सिक कंपाउंड के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड होता है और उन्हें लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट अफेक्ट टू द मिथाइलेशन प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से मिथाइल ग्रुप के एड ऑन होने से उस पर्टिकुलर टॉक्सिन का इफेक्ट कम आता है और it make the excretion process easy. So this is the phase second of the xenobiotic metabolism जिसमें conjugation होता है, कुछ functional group add on होता है। मीन्स कि फर्स्ट फेज में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि solubility mainly कन्वर्ट होती है, और सेकेंड फेज में कुछ फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ जो टॉक्सिक कंपाउंड से बने हैं और वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now on the next slide we will see the conclusion of phase 1 and phase 2. This is the basic conclusion जो phase 1 और phase 2 में होता है। जो as you can see here the type of reaction in the table, type of reaction hydrolysis. In phase 1 you can see the hydrolysis oxidation reduction. This is the conclusion of the phase 1 and phase 2 simple कि phase 1 में क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, दो इन phase 2 कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स कि जो फंक्शनल ग्रुप है एज पर द टॉक्सिक कंपाउंड वो उन पर एड ऑन होते हैं और उनके साथ कॉन्जुगेट करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड के साथ, उनकी पोलैरिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी को फर्दर इफेक्ट डालते हैं। एंड in the second line you can see here the increase in the hydrophilicity मीन्स कि जो फेज 1 है, जो टॉक्सिक कंपाउंड जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो फेज 1 में एंटर करने के बाद हम उसे वाटर सॉल्युबल करना चाहते हैं जिससे कि वो इजीली यूरिन के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू पास आउट हो जाए। तो इस फेज 1 भी ये काम करती है, मीन्स उसे वाटर सॉल्युबल करने का काम करती है, बट कंपैरेटिवली फेज 2 के वाटर सॉल्युबिलिटी या उसकी पोलैरिटी को कम इम्पैक्ट कर आता है फेज 1 का, एंड इन फेज 2 ये पोलैरिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, और इसकी वजह से इजीली कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड पास आउट हो पाता है थ्रू द डिफरेंट पाथवेज, यूरिन, फीकल मैटर और स्वेट ग्लैंड, एनी काइंड ऑफ पाथवे। एंड इन थर्ड लाइन जनरल मैकेनिज्म मीन्स कि फेज 1 में केवल एक्सपोज होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड का के फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक्सपोज होते हैं, और इन फेज 2 ये कुछ नए फंक्शनल ग्रुप उस टॉक्सिक कंपाउंड के साथ ऐड होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द फेज 1 एंड फेज 2। इन द होल टेबल यू कैन सी कि जो फेज 1 है वो फंक्शनल ग्रुप को केवल जो टॉक्सिक कंपाउंड के अपने फंक्शनल ग्रुप है उन्हें एक्सपोज कर पा रही है, कोई नया फंक्शनल ग्रुप वहां पर एड ऑन नहीं होता है। और इन द फेज 2 पोलर कंपाउंड एडेड टू द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उस टॉक्सिक कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ कुछ ऐसे और कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड की टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है और इनकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें पास आउट कराना या एक्सक्रीट करना बॉडी से इजी हो जाता है। इन कॉन्सिक्वेंसेस these are made in phase 1 it cause the metabolic activation, and in phase 2 cause the excretion, means कि before phase 2 in phase 1 only metabolic activation happens of the toxic compound, and in phase 2 excretion is possible. So this is the conclusion of the phase 1 and phase 2 of the metabolic process of toxic compound. And these are some factors which can affect to the xenobiotic metabolism. Means कि xenobiotic का या किसी toxic compound का metabolism किस तरह से या कितना fast होगा या deposit होंगे, it depends on many factors. As you can see here in this picture, these are some factors
like pregnancy में कुछ because hormones also play the role in the xenobiotic metabolism, तो pregnancy में कुछ hormonal changes की वजह से जो toxic compound है उनका किस तरह से metabolism हो रहा है, it affect means pregnancy can also affect the metabolism of xenobiotic compound. And some disease like diabetes and inflammatory mediators, जो disease के टाइम पे कुछ inflammatory mediators यानी कि inflammation के टाइम पे जो chemical compounds बनते हैं या कुछ enzymes release होते हैं, they can also affect the metabolism of toxic compound. और drug interaction means कि कोई ड्रग किसी दूसरी ड्रग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड. एंड सम liver diseases are main cause of the metabolism, disturbed metabolism. If someone has some disease related to the liver, and as I explain you in the lecture कि liver जो है वो main organ है जो toxic compound के metabolism में help करता है. तो if someone has a liver disease, तो definitely it will disturb to the metabolism of the toxic compound. जो भी particular individual liver की किसी तरह की disease से suffer कर रहा है तो उसके अंदर toxic compound का metabolism affect होगा ही होगा. And organ transplantation can also affect the metabolism of toxic compound. So these are the factors which can affect to the metabolism of xenobiotic compound. Thank you everyone, and I hope you understand well the metabolism of toxic compound. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel for further updates.